Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will cover some aspects of Union Budget that is concerning the banking industry. And there may be questions on this in all bank interviews. So what are the important factors that will affect the banking industry? First is allocation under PM Awas Yojana is increased to 79,000 crore. So this is good for banking. When housing activities goes on, this money is distributed in economy and it has a positive impact as far as banking is concerned. Second important aspect is agriculture credit target raised to 20 lakh crore. And here the government has said focus will be on animal husbandry, dairy and fisheries. Another important aspect is that there will be amendment in Banking Regulation Act and RBI Act. Details not available as yet. As and when these details will be available, we will cover in our videos. Another important thing is if there is shortfall in priority sector lending. A new concept under National Housing Bank will be created where Urban Infrastructure Development Fund will be created and banks can deposit that shortfall in this Urban Infrastructure Development Fund, and this money will be used in tier 2 and 3 cities for housing development. At present, any shortfall in agriculture lending is deposited with NABARD under RIDF, Rural Infrastructure Development Fund. Another important aspect is raising of limit in income tax from 5 to 7 lakhs under new regime. Now, the moment this income tax limit is raised, it directly or indirectly means the disposable income will improve. When taxation is reduced, disposable income increases. And the moment disposable income increases, it leads to more money available for deposit in banks and it raises the capability of the person to raise more loan. So this directly or indirectly help the banking industry because this will result into increase in deposits as well as increase in credit, and both are beneficial for banking and both are business development activities. So these are some of the features that is visible in bank union budget at present that is concerning the bank. And if I get more data, more information, I will put it in a supplementary video. And right now, whatever I could read, whatever is available on media, I have tried to capture it for you so that you can prepare for coming interviews as well as general awareness paper. This channel provides lot of information on banking, finance and economics. So playlist link is available in description. Watch all these videos. This is going to help you tremendously. Also cover current affair. For current affair, I have suggested you a very good source. Link is available in description. Click the link. You will land up on an app. Download the app and take current year plan. Apply coupon code AA03 to have 10% off. So overall knowledge in banking, overall knowledge in economics and overall knowledge in finance helps you in cracking bank exams and perform well in interviews. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज यूनियन बजट आया. अब इस यूनियन बजट में क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट हैं जो बैंकिंग को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करता है, ये हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत एलोकेशन बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दी गई है. जब पीएम आवास योजना में एलोकेशन बढ़ती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट इकनॉमी पे बढ़ता है, क्योंकि जब लोगों के पास हाउस होंगे, हाउसिंग एक्टिविटी में पैसा लगेगा, तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वेरियस पर्सन्स में. जो आदमी उस मकान को बनाएगा, जो खरीदेगा, रहेगा, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है और साथ ही साथ इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट बैंक्स को मिलता है.
दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर आया है वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि जो फोकस होगा वो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरीज पे होगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि बैंक्स को अब ज़्यादा क्रेडिट देना है एग्रीकल्चर में, तो एक क्रेडिट बढ़ेगा, ये एश्योरेंस हो गई। इसके अलावा बजट में ये कहा गया है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और जो आरबीआई एक्ट है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाएंगी, अमेंडमेंट्स की जाएंगी बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा रॉबस्ट बनाने के लिए। तो अब इसकी डिटेल जब आएंगी तो पता लगेगा, बट अभी ये इतना ही सूचना उपलब्ध है। इसके अलावा जो बहुत ही अच्छा चीज़ की गई है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल होगा वो पैसा बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक में एक नया क्रिएटेड फंड है, उसमें जमा कर सकते हैं। उसका नाम होगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये पैसा यूज़ करेगा टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ के अंदर हाउसिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट देने के लिए। अभी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर शॉर्टफॉल होता है वो बैंक जमा करते हैं नाबार्ड में, RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। तो एक और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट कर दिया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक में। तो ये भी बैंकों के लिए एक पॉजिटिव है कि अगर प्रायोरिटी सेक्टर वो लैंडिंग नहीं कर पा रहे तो उनके पास अब एक रूट आ गया है जहां वो पैसा जमा करके अपने इन लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो आया है इनकम टैक्स की जो स्लैब बढ़ गई। जो नया स्कीम के अंतर्गत इनकम टैक्स एसएससी हैं, अब उनकी जो आयकर की छूट लिमिट है वो 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हो गई। तो जब ये छूट लिमिट बढ़ती है तो क्या हो गया कि अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, क्योंकि टैक्स बच गया आपका। जब किसी भी व्यक्ति की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव बैंकिंग पे पड़ता है, क्योंकि ये जो बचा हुआ पैसा है या तो डिपॉजिट की शेप में बैंक में आएगा, क्योंकि वो बचत करेगा, बैंक में रखेगा, या इस पैसे को वो इस्तेमाल करेगा कुछ एसेट्स को क्रिएट करने में जहां वो लोन लेगा, तो अब उसकी EMI देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जब भी डिस्पोजेबल इनकम इकोनॉमी में बढ़ती है तो बैंक्स के डिपॉजिट भी बढ़ते हैं, बैंक के एडवांसेस भी बढ़ते हैं। तो ये भी एक बैंकिंग के लिए पॉजिटिव स्टेप है। तो कुछ अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने बता दी है। जो और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपके पास बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के हैं। सारी वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करंट अफेयर के लिए भी मैंने आपको एक अच्छा सोर्स बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड करके करंट ईयर का प्लान ले लें, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। वहाँ से करंट अफेयर की आप तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।